Well, with G20 around the corner, our furry friends are also suffering a bit because of this mega event. What is happening right now in the particular areas where there are delegations staying, where the G20 is happening, what the authorities are doing, they are sensitizing this entire area. And in fact, what they're doing right now is they're picking up dogs from those areas, street dogs from those areas. And in fact, they are relocating some of the dogs. And in fact, some of the dogs are being actually taken to different facilities which have been created by the government. Now, there are a lot of questions when we talk about the street life, the street animals in the national capital. In fact, we have seen how there are different ways which the government have adopted to actually cater to one of the menace, which is due to monkeys. Now they have installed chimpanzee posters across the national capital. But in fact, what is happening with the dogs is a big question. And in fact, all the dog lovers out there wants to know that, all the animal lovers wants to know that what is exactly happening with our little furry friends. In fact, there are certain NGOs which are actually working to locate these dogs and in fact to take care of these dogs. In fact, I have representatives of such organizations with me. सर, सबसे पहले आपका नाम और आप किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? मेरा माय नेम संजय महापात्रा, मैं हाउस ऑफ स्टे एनिमल्स के फाउंडर हूं और हम दिल्ली में जितने भी एनिमल लवर्स है, एनिमल केयर गिवर्स है, फीडर्स है, डॉग लवर्स है, दे आर वेरी मच पैनिक अबाउट सच इंसिडेंट। जिस तरह एनिमल्स को रोड से उठाया जा रहा है, इनका कोई टैगिंग नहीं है, वो कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है। डॉग दोबारा अपने एरिया में वापस आएगा ही नहीं आएगा। अगर रिलोकेट होता है फिर डॉग बाइट की संभावना आगे बहुत आएगा। जो आज की डेट में लोग बोलते हैं कि डॉग बाइट होता है, कि डॉग बाइट की सेंसेस है ही नहीं है। और ऐसे केसेस में हम म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को मदद करना चाहते हैं। उसी एरिया में जहां डॉग जा रहे हैं, हमारा एनिमल वॉलंटियर्स वहां पहुंचे, उनको खाना पानी और उनको केयर करे। और जस्ट आफ्टर दिस G20, so dog will be happily return back their own area, own territories. That's exactly law. We cannot relocate the dog one place to another place, so that the dog. Actually, we were talking about relocation of dogs. It is very important. So what is happening right now is there is no. We cannot say that there is a menace created by street dog, but there is a prone situation. Yes. So this is something very interesting. Your organization is doing. Can you explain a little bit about it? Yes, sir. Sir, one more thing I just added here कि जिस तरह डॉग्स को कैच किया जा रहा है ब्रुटली वेयर में, आप वो वीडियो जब आप देखेंगे, इट्स इमोशनली आप जरूर सोचेंगे कि ये दिस इज ए रॉन्ग, ये गलत हो रहे। तो उसको हमें रोक के एक बड़े जेंटल वे में एनिमल्स को कैसे पकड़ा जाएंगे। जो एनिमल केयर गिवर्स है, जो उनको खाना खिलाते, उनके पास फेथ है, वो बुलाते इनके पास आए तो वो उठा के गाड़ी में लोड कर देते हैं। लेकिन जिस तरह एमसीडी स्टाफ उसको पकड़ रहे, वो जो टेक्निक है, द टेक्निक इज नॉट साउंड टू सी। लोगों को देखने में बहुत तकलीफ हो रहे, उनको इतना दर्द हो रहे, ये महसूस हम खुद कर पाएंगे, आप भी कर पाएंगे, कि आम इंसान भी कर पाएगा। So the technique is questionable, as you're mentioning. Can we talk about the initiative which your organization, because this seems very interesting. Yes, sir. सर, कल हम एमसीडी से मिलने जा रहे हैं। एमसीडी से हमारा कुछ लोग जा रहे हैं। हम एमसीडी से वो पॉइंट पे बात करेंगे जो डॉग रिलोकेट हुई है, स्टॉप दिस रिलोकेशन। और हमने ये एक टैग बनाया जिसके नाम है डॉग टैग मिशन। ये जब टैग उसमें लगाया जाएगा, हम डॉग को कहाँ है, डॉग की मूवमेंट क्या है, डॉग की वैक्सीनेशन हुई नहीं हुई है, और कितना एनिमल्स हमारा सोसाइटीज में जो है। जियो टैगिंग के बेसिस पे वर्क करेगा कैसे आपको किसी डॉग की इन्फॉर्मेशन मिलेगी? गूगल मैप के उस पे टैग्ड है और इसमें फोन नंबर, एड्रेस, व्हाट्सएप से चैट करना, सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। हेल्थ केयर की इन्फॉर्मेशन रहेगी, डॉग की हेल्थ क्या है वो सब पता लग जाएगा। तो बेसिकली अगर जैसे ये टैग जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये टैग अगर ये डॉग को किसको दिया जाएगा? तो ये डॉग के कॉलर में लगेगा, और अगर डॉग कहीं गलत जगह या दूसरी जगह चला गया तो वहाँ के लोग उसको स्कैन करके हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या अथॉरिटीज को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि ये डॉग कहाँ का है, कौन सी लोकेशन का है। तो वहाँ फोन नंबर है, जो फीडर है या एनजीओ है उसका फोन नंबर है, या ओनर है उसका फोन नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन होगी हेल्थ के साथ। और साथ में इसके ये है कि ये व्हाट्सएप से भी कनेक्टेड है, तो बहुत इजी कम्युनिकेशन हो जाएगा। और डॉग पॉपुलेशन जो आज तक पता नहीं लगी है सरकार को, वो पता लग जाएगी।
सर ये जो इमीडिएटली जो इन्वेंशन है वो G20 को लेकर हमने इमीडिएट किया है, ताकि हम एमसीडी साथ मिलके उन डॉग को टैगिंग करके उन डॉग अपनी जगह वापस आ पाए, ना इन डॉग को रिलोकेट किया जाए। और ये एक हमारा लॉ बोलता है, जो हमारा कानून बोलता है, कानून के तरीके से हम एमसीडी को मदद करना चाहते हैं। Well, so this is the word coming in from these organizations which are doing actually a wonderful job to actually help our little four-legged friends to actually relocated once they have been displaced from their original positions. As we know, dog is a territorial animal which actually resides in a particular territory. They're familiar with actually the surroundings, and in fact, if these animals are taken to different position, their behavior changes, the way they treat others, it changes, and in fact, it also increases the chances of dog bite. So this is an initiative which is being carried out by some of these organizations here in the national capital in lieu of G20.